Yes. Okay. So we are talking about the disk size. So Bashar, as I told you, we don't have to worry about it. Why? Just to give you a hint, while decreasing, data काफी जो है corrupt होता है. Microsoft has observed that, or decrease is not available as of now, right? So we have to be focused on that. Decrease is not available. ठीक है? Increase is available. We were at downtime. Downtime लगेगा या नहीं लगेगा? So downtime, it's something where you have to reboot the server. Not want to, you have to. कि मैंने कोई चेंज ऐसा कर दिया जिसके बाद सर्वर को रीस्टार्ट करना है. सो इफ आई एम रीस्टार्टिंग द सर्वर, फॉर एग्जांपल इफ आई गो हेड एंड check this, let's say my one of my websites, this one. Okay, this is running on a server. People are using it, they are using some services, etc. Now if I reboot this server, what do you think will happen? Is my website, is my application up and running? Let's say this was some application where people are ordering something, और मैंने सर्वर रिबूट कर दिया, क्या होगा? Will this site They work or will not? lose the connection. यस, दे विल लूज द कनेक्शन. वो ऑर्डर नहीं होगा. उस 1 घंटा अगर लग गया सर्वर को अप एंड रनिंग होने में, तो वो उतना ऑर्डर चला जाएगा. सो रीबूट इट्स अ डाउन टाइम. डाउन टाइम इट्स बिजनेस इम्पैक्ट. तो रिबूट को हम इतना लाइटली नहीं लेते हैं. ठीक है कि यार ठीक है ना, एक रिबूट ही तो है. नो, इफ देर इज अ रिबूट देर इज अ डाउन टाइम, एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग. इफ इट इज नॉट वर्किंग देन यू आर लूजिंग योर बिजनेस. गॉट इट? इसलिए रिबूट इट्स वेरी एसेंशियल पार्ट. Hence, you should know कि कहाँ पर reboot जरूरी है, कहाँ पर नहीं है. So when it comes to increasing the size of your data disk, you do not require any reboot, right? If you want to increase the size of your C drive, which is your operating system disk, then a reboot is needed. Is a reboot needed when I have to decrease the size of data disk, guys? To decrease the No, data not disk needed. size, a reboot is needed or not? Not needed. Now look at this. A very simple trick question. But Very first thing, data can I disk. decrease the size of the data disk? No. No. Oh, you Okay. can. And they will ask you a question like this in your interview. You have to be very firm about it. You can't decrease the size. Forget about rebooting. Reboot second में आता है. You can't decrease size. Decrease नहीं कर सकते हो तो reboot वाला question ही नहीं आता है. ठीक है? So be very clear about it. Imagine this again. We can take the example of your mobile phone. It's not exactly like this because mobile में internal memory को expand करने का कोई option नहीं होता है. बट मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने और रिमूव करने में आपको मोबाइल रिबूट नहीं लगता है. बट इफ यू हैव टू डू समथिंग इन योर इंटरनल मेमोरी, उसको आपने कोई फॉर्मेट वगैरह किया है, कुछ किया है, तो फिर से फोन को चलने के लिए एक रिबूट जरूरी होता है. इन सिमिलर मैनर योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, उसको आप एक इंटरनल ये कर लो. दो इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, इस तरह से इंटरनल कुछ नहीं होता है. डिटैच उसको भी किया जा सकता है इन एज्योर. विल सी दैट लेटर, राइट? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. एंड डेटा डिस्क को आप, it's always like memory card, उसी तरह से उसको assume करो. It will be better for you to remember it or keep that in your mind, right? So this is it. uh, this is your operating system disk. This is your operating system disk type. So clear for everyone? Yes, no, maybe? Yes. Okay, let's go ahead and like check the next option. Delete with VM. What is this option? This option is when I delete the virtual machine, मेरा डिस्क भी डिलीट हो जाना चाहिए. सो विल ऑलवेज कीप दिस चेक. इससे ज्यादा इसको और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. की मैनेजमेंट वी आर नॉट कवरिंग इट नाउ, ये बहुत बाद में आएगा पास सर्विसेज में. सो एज ऑफ नाउ यू ऑलवेज लीव इट टू प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की. दो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप. इसमें एक और होता है कस्टमर मैनेज की, विच इज वेरी एसेंशियल टॉपिक, हमेशा पूछा जाता है. बट वो इसमें मिक्स नहीं करेंगे हम. अंडरस्टैंड गाइज, वाइल क्रिएटिंग योर मशीन बहुत सारी चीजें आएगी जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाला पेज नेटवर्किंग, इसको तो हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे. नेक्स्ट 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 करते रहेंगे बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ इट, और तब आप इसको समझोगे, राइट? सो वैसे हमने बेसिक में एक और चीज छोड़ दी यहाँ पर भी, दिस वन, ये वाले. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्किप मेनी थिंग्स नाउ because as of now the aim is to understand this page कि machine कैसे बन रही है. Okay, so disk वाला part I hope clear to everyone. These two we are leaving as it is. Enable ultra disk compatibility, leave it. वैसे भी see ultra disk compatibility is not supported to this size.
तो साइज से इससे एक चीज समझ में आई, वी आर नॉट डिस्कसिंग अल्ट्रा डिस्क कंपैटिबिलिटी, बट यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि साइज में और भी चीजें मैटर करती है, साइज इज नॉट ऑलवेज फॉर रैम। कई ऐसे चीज है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम एसएसडी कोई छोटे साइज पे नहीं सपोर्ट करती है, right? So if user has told you can take this particular size and give me premium SSD, और यहाँ पर आने पे आपको पता चल रहा है that this machine doesn't support premium SSD, then again you will go back and take a screenshot वगैरह और बता दो यूजर को कि यार आपने जो मशीन का साइज बोला है और जो SSD लेने बोला है ये दोनों compatible नहीं है एक के साथ। So then they will change their decision. Either they will ask you to change the machine size or they will ask you to change the disk का type. Is this part clear, guys, to everyone? Yes. But very thumb rule, keep it in your mind. As an engineer, a deployment engineer, administrator, you are no one to decide for on behalf of client. You are no one to decide कि यार चलो एसएसडी में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है एसएसडी दे देते हैं। नो, मे बी ही इज यूजिंग हिज मशीन ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज, एक दिन के लिए ही यूज करना था उसको, बहुत ही छोटा काम था, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था एचडीडी है या एसएसडी, राइट? बट यहाँ पर कॉस्ट कम लग रहा है इसलिए उसने ये ले लिया। नाउ यू हैव गिवन एसएसडी, अननेसेसरी का बिलिंग बढ़ा दिया आपने, right? So you should not be doing this. You should not be doing this. You should not be selecting or deciding anything on behalf of your customer. You'll always get a build sheet. कुछ नहीं है, you always have an option to go ahead and ask. इंटरव्यू में आप यही जो है ना मेथड फॉलो करोगे। When they ask you कि what will you select here, you can recommend them that okay, I see you have selected this size, and I'm not expecting you to remember everything. Approach याद रखना है that if you have selected X size and that XYZ size supports premium SSD, and as per your build sheet, I can see that you're going to use your server for production workload, production usage, then recommendation is you should go with premium SSD. But who would select that? Decide कौन करेगा? एप्लीकेशन ओनर। सो इंटरव्यू में आपको इतना ब्लैंक भी नहीं होना है कि आप बिल्कुल बोल दो यानी आई डिडंट नो एनीथिंग, आई जस्ट वांट अ बिल्ड शीट एंड आई कैन बिल्ड इट, यू टेल मी एचएसडी लेना है एसएसडी लेना है। इंटरव्यूअर विल से फाइन आई टेल यू बट डू यू एटलीस्ट नो द डिफरेंस, देयर यू शुड नो दिस मच ऑफ डिफरेंस। एक चीज तो कि हर साइज पे हर डिस्क अप्लाई नहीं होती है, राइट? तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड, which disk is recommended for what. It doesn't mean कि the one website which I just showed you, this one, it is not on SSD because people are rarely using it. This is just to showcase. कभी कभार client visit करता है, this is just for showcasing. This is not something जहां पर लोग इसको डेली जाकर कुछ परचेज करते हैं, बाय करते हैं, बहुत ट्रैफिक आता है, nothing like that. ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। So why would I go ahead and take SSD? Literally वो साइट जो है HDD पे है। Now, if I had asked you to create it in HDD, but आपने सोचा यार SSD है अच्छी चीज देता हूं मैं, my billing would impact, right? So you will not go ahead and select anything, but you should know it at least कि आपका अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है गो फॉर एसएसडी, आपका अगर लाइट वेट एप्लीकेशन है गो फॉर स्टैंडर्ड एसएसडी। बहुत ही बेसिक चीज है, बैकअप के लिए यूज कर रहे हो उसको, नॉन क्रिटिकल डेटा है टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, गो विथ स्टैंडर्ड एचएसडी एचडीडी। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इज इट क्लियर? व्हाट विल यू से? नेवर एवर से कि यार मुझको बस बिल्ड शीट आती थी और मैं उसको देखकर करता था, उससे ज्यादा आई डोंट नो एनीथिंग। दैट शुड नॉट बी योर आंसर। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस गाइस? Yes. व्हाट अबाउट अदर्स? तुषार, आर यू गेटिंग इट? श्रुतिका, शहबाज, सलमान, रॉबिन, रईसा, प्रियंका, प्राजक्ता, नगमा, आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, yes. ओके, Yes. फाइन। So this one we discussed. Now let's talk about the data disk. ठीक है, OS disk we explained in detail. Data disk, it's your like your memory card. It's not essential. I can have a machine without data disk. Simply. जैसे आप फोन हो सकता है आपका विदाउट मेमोरी कार्ड, कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट अवेलेबल, स्टिल यू डोंट पुट अ मेमोरी कार्ड, इट कैन हैव। आईफोन्स, नो ऑप्शन ऑफ मेमोरी कार्ड एट ऑल, बट फोन आर स्टिल देयर, फोन वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली डेटा डिस्क, डेटा डिस्क में आप चाहो तो रखो, ना चाहो तो ना रखो। लेट मी ओपन माय laptops this one and you will be able to see it. So here it is. This is my laptop's uh, disk and drives.
ये जो सी ड्राइव है इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड आई होप यू गाइस कैन सी द आइकन आल्सो, राइट? दिस आइकन शोज इट इज अ सिस्टम ड्राइव। तो ये सी ड्राइव में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दिस इज अ डिफरेंट डिस्क। ओके, और उसके बाद ये जो बचे हुए ड्राइव्स है, दिस इज ऑन डिफरेंट डिस्क। ड्राइव कुछ नहीं होता है, एक ड्राइव डिस्क के ऊपर जो आप फोल्डर बनाते हो उसको ड्राइव बोल सकते हो आप। नॉट लिटरली, बिकॉज इस ड्राइव में भी और फोल्डर्स बनते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट कवरिंग दैट, वो हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। ठीक है, सो इफ आई गो हेड एंड आई शो यू माय डिस्क मैनेजमेंट ऑफ माय लैपटॉप। इट्स ओपनिंग। Don't get confused between drive and disk. Disk is something which is physically attached. Drive is something उस disk के हम partition करते हैं, कि एक ड्राइव 1 TB का है, इसके दो चार पार्टीशन करके दे दो मुझको, सी ड्राइव, ई ड्राइव वगैरह कुछ बनाकर दे दो। Disk is something which is physically attached. Okay, so how many disks do you see in my laptop, guys? डिस्क तो एक ही है। No, don't go by number. How many disks do you see? Do you see only one disk? One disk. What is this then? And what is this? Two disks. We got Yes. two disks, C and D. Huh. Zero. Yeah. No, no, no. Where is C and D? These are drives, guys. These are drives. You have two disks, 0 and 1. Yes, it's clearly written here. Disk 0 and disk 1. Though the number starts with 0, but count कितना है? 2 है. Right? So I have disk 0, I have disk 1. Disk 0 का मेरा capacity कितना है? 931 GB, which is almost 1 TB. Right? 1 TB का मेरा एक डिस्क है. And then ये disk 1 कितना है? इसका capacity है 474 GB, 76 GB. नेट ये कर लो तो आप एक 500 का डिस्क है, 500 GB का, और एक 1000 GB का डिस्क है, राइट? देयर आर टू डिस्क। इनमें से आई हैव सेलेक्टेड डिस्क 1, जिसपे मुझको मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिसपे सी ड्राइव है। वेयर आई वांट दिस, एक और ड्राइव है, इसका नाम मैंने सिर्फ एसएस ड्राइव रखा है, सो आई कैन सेव ऐसा डेटा जो बहुत हैवी होता है मैं इसमें सेव करता हूँ, बिकॉज एसएस ड्राइव फास्ट चलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो डिस्क है मेरा, ये क्या है? दिस इज माई HDD हार्ड डिस्क है, ये प्लेन। Look at this. If I can show you some details here. तो ये है मेरा गाइस स्टैंडर्ड डिस्क, ये 1 TB का है मेरा हार्ड डिस्क, और यहाँ पर है मेरा सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। क्यों मैंने दो रखे हैं इसमें? बिकॉज SSD में मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। इट हेल्प्स मी टू रीबूट माई सिस्टम वेरी क्विकली, स्टार्ट माई सिस्टम वेरी क्विकली। अदरवाइज यो विंडोज का आपने देखा होगा, वो बहुत स्लो टाइम लगता है लॉग ऑफ लॉग इन होने में। दैट इजंट द केस इन माई लैपटॉप, बिकॉज आई एम रनिंग इट ऑन माई SSD, बहुत ही फास्ट होता है। रिमेनिंग मुझको कोई मूवीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा रखना है, तो आई एम ओके विथ हार्ड डिस्क, उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाए तो आई एम फाइन। बट मेरा जो वर्किंग है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इफ आई क्लिक हियर, ये कितना फास्ट खुलेगा, ये कितना स्लो खुलेगा, along with my RAM and CPU, it also depends on the disk, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको SSD रखा है। सो हाउ मेनी डिस्क डू आई हैव? 2। इसमें से कौन सा डिस्क मैं निकाल दूं अभी इमीडिएटली, राइट क्लिक करके इसको ऑफलाइन कर दूं, माय लैपटॉप वुड स्टिल बी रनिंग? व्हाट डू यू थिंक? Disk zero यस, व्हाई डिस्क 0? because the operating system is installed on disk one, which is sufficient to run the machine. Yes. Guys, what about others? Are you getting the, did you get the question, guys? Other than Bashar? Did you get the question? Did you understand the answer? Yes, no, maybe, yes, Muzammil, Ittasam, any Yes. doubt? राइट, सो ये है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैं नहीं निकाल सकता हूँ। इवन इफ आई वांट, लुक एट दिस, इफ आई राइट क्लिक, आई कांट टेक इट ऑफलाइन, इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, राइट? एंड इफ आई क्लिक हियर, लुक एट दिस, आई कैन
टेक इट ऑफलाइन. इफ आई टेक इट ऑफलाइन क्या होगा पता है मैक्सिमम? इसमें जो ड्राइव्स है ना, विच ड्राइव्स आर दैट? ड्राइव ई एंड एफ. सो दिस ड्राइव ई एंड ड्राइव एफ, ये दोनों ड्राइव गायब हो जाएंगे. दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा, हमारा सेशन भी कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. ये वाला इवन इफ आई वांट टू आई कांट टेक इट ऑफलाइन बिकॉज आई एम रनिंग ऑन दैट लैपटॉप. इसको ऑफलाइन लेने का एक अलग तरीका, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट यहाँ पर एज इन लोकल में. बट डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? नाउ लेट्स गो बैक टू अज्योर. तो ये जो हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क. 127 GB आपको डिफॉल्ट मिलता है. आपको बढ़ाना है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग मशीन, यस यू कैन. बाद में बढ़ाना है, यस यू कैन. आप दोनों भी टाइम बढ़ा सकते हो इसको. इन डिक्रीज करना है, नो यू कैन नॉट. ठीक है. बट हियर यहाँ पर बढ़ाना इट्स ओके, मशीन अब तक अप एंड रनिंग ही नहीं हुई है. इसको मशीन बनने के बाद बढ़ाने में देयर इज अ रीबूट नीडेड. ठीक है. एंड डेटा डिस्क में कोई रिबूट की जरूरत नहीं है. सो लेट्स गो अहेड एंड चेक. नाउ डेटा डिस्क ऑन दिस मशीन, डेटा डिस्क फॉर दिस मशीन. One option is you create and attach a new disk. Second option is you attach an existing disk. What does it mean? एक तो हो सकता है कि यार आपका मेमोरी कार्ड एक अपने बिल्कुल नया परचेज किया है एंड देन यू आर इंसर्टिंग दैट, जिसमें आपका कोई पिक्चर कुछ नहीं है. इनिशियली यू आर इंसर्टिंग और लेटर ऑन आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके उसमें शेयर करना चाहते हो. व्हाट इज द अदर ऑप्शन गाइस इन मेमोरी कार्ड? इन टर्म्स ऑफ मेमोरी कार्ड क्या नॉर्मल क्या सिनेरियो देखा हमने? मेमोरी कार्ड कैसे यूज करते हैं हम? इज इट ऑलवेज कि हम नया परचेज करते हैं मेमोरी कार्ड? व्हाई डू No, वी we take हैव? it out from the we take it out from the old phone and use it in the new. मैक्सिमम पर्पस ही वही होता है कि मेरा फोन भी अगर खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरा डेटा बचा रहे. सो आई सिंपली रिमूव इट फ्रॉम ओल्ड वन, कीप इट विथ मी फॉर फ्यू डेज, मेरे पास पड़ा रहेगा वो. आई परचेज अ न्यू फोन आफ्टर 15 डेज, किसी नए मॉडल का मैं वेट कर रहा हूँ. और जैसे ही नया मॉडल आ गया मैंने इंसर्ट कर दिया अपना मेमोरी कार्ड, फोन चल रहा है और मेरा ओल्ड डेटा भी मुझको रिसीव हो गया. सिमिलरली वी हैव बोथ ऑप्शंस. वन इज यू कैन क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क, यस, एंड यू कैन अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क. बट एग्जिस्टिंग डिस्क अटैच पे इफ आई क्लिक, तो यहाँ कोई डिस्क होनी तो चाहिए तभी दिखेगी. In my case, I do not have any disk, so I will not be able to attach any disk. So let's go ahead and check first how to create a disk. So click on create and attach disk. ठीक है. I clicked on that. Yeah. Now, what is the name? किस चीज का नेम है ये? What do you think? Is it my machine's name या किस चीज का नेम पूछ रहा है मुझको? मशीन में. Data disk. No, it's not machine name, guys. It is It's a here. data It is disk. the disk name. जो disk में attach करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या होगा? So it's always recommended कि use some sensible name. लाइव एनवायरनमेंट में इसका भी एक नेमिंग कन्वेंशन हमेशा होता है, इसी तरह से कुछ होता है. मशीन का नाम होगा, डेटा डिस्क होगा और डेटा डिस्क का नंबर होगा. बट एज ऑफ नाउ मुझको इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो आई सिंपली से डेटा डिस्क 1, बस इतना ही बोल देता. इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिमेंबर. ठीक है. डेटा डिस्क 1 जो है याद रख लो, डेटा डिस्क 1 हमने ये किया है. सोर्स एज ऑफ नाउ जस्ट लीव इट एम्प्टी, क्योंकि मुझको एक ब्लैंक डिस्क चाहिए. नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द मशीन, साइज ऑफ द डिस्क जो आप अटैच करने वाले हो एक डेटा डिस्क, उसका साइज क्या है? So here it is. Do you see size wala page? It is giving me 1024 GB, which is 1 TB. और क्या टाइप दे रहा है ये? टाइप क्या है डिस्क का गाइस? SSD. Yes, it's premium SSD, not SSD. SSD is different, premium SSD is different. दोनों में प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस होगा. But I don't want that. Let's click on change size. Now look at this again, Wasim. Here if I go back, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. यहाँ पर भी अगर मुझको बैक जाना है तो सिंपली क्लिक हियर. यहाँ पर भी बैक जाना है, क्लिक हियर अपर राइट हैंड कॉर्नर. सो चेंज साइज. यहाँ पर लुक एट दिस. डू आई हैव एनी लिमिट ऑप्शन दैट डू आई हैव एनी रिस्ट्रिक्शन कि यार 127 GB से कम नहीं हो सकता है? नो. सी प्रीमियम एसएसडी. फर्स्ट चीज तो आप स्टोरेज का टाइप सेलेक्ट कर लो. वॉट एवर इज देयर इन योर रिक्वेस्ट, जो भी आपके रिक्वेस्ट में दिया है. अगर आपके रिक्वेस्ट में दिया है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए प्रीमियम एसएसडी, बिकॉज आई वॉन्ट माई ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी वेरी फास्ट, अप एंड रनिंग, अच्छे से चलता हुआ, तो वो मुझको चाहिए प्रीमियम एसएसडी. गॉट इट. बट हार्ड डिस्क जिसमें मुझको बस कुछ डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, इट्स ओके. सो देयर आई वॉन्ट स्टैंडर्ड HDD.
आई वॉन्ट टू सेव सम मनी, ठीक है। नॉट जोन रिडंडेंट, वी आर नॉट डिस्कसिंग जोन रिडंडेंट। जोन रिडंडेंट जब चाहिए होगा तो स्पेशली बोला जाएगा जोन रिडंडेंट, नहीं बोला है तो इट्स ऑलवेज लोकल। अब ये लोकल और जोन क्या है, विल सी दैट लेटर। सो व्हाट डू आई वांट हियर, स्टैंडर्ड HDD। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड HDD। नाउ लुक एट दिस, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ साइज। यूजर हैज आस्क्ड कि मुझको एक 32 GB का डिस्क चाहिए। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लिया। यूजर हैज आस्क्ड मुझको 50 GB का चाहिए। डू यू सी 50 GB हियर बाय द वे, 32 64 50 दिख रहा है यहाँ पर। नहीं। So let's go ahead and type it here 50 and let's see if it allows us to do that. What do you think? It will allow us to do that or not? We'll see that. So, Yes. yes. Okay. Delete the disk with VM. कि VM डिलीट होगा तो ये डिस्क अपने आप डिलीट हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली नहीं होता, अगर आपने इसको अनचेक रखा है तो आपका ये हो जाएगा, OS डिलीट डिस्क हो जाएगा, मशीन डिलीट हो जाएगी, बट डिस्क ये हमेशा वहां पर पड़ा रहेगा। इट इज अगेन लाइक योर मेमोरी कार्ड। आपने मेमोरी कार्ड रखा है और आपने फोन को रीसेट कर दिया नेटवर्क सेटिंग, तो आपके मेमोरी कार्ड के पिक्चर्स चले जाते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक? No. नो। No. सिमिलरली, तो while I'm resetting my machine or I'm deleting my machine, मेरा डिस्क जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इट्स अप टू यू। और मैं इसको रख के क्या करूंगा, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू दिस? चलो मैंने मशीन डिलीट कर दी, बट आई हैव अनचेक दिस। मैंने मशीन डिलीट कर दी, ये डिस्क पड़ा है अब कहीं पर। व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या करूंगा मैं इस डिस्क का? कुछ काम आएगा? Data No. backup. हाँ, बैकअप ही है मेरे लिए, चलो, बट वेयर विल आई यूज इट, हाउ विल आई यूज इट? इट इज बैकअप फॉर मी। यूज कैसे करूंगा इसको मैं? नेक्स्ट मैंने मशीन बना ली, हाउ विल आई यूज द सेम डिस्क? We can't use. There is an option over there, existing Atta- disk. यस, correct. व्हाई कांट वी यूज? अगर मैंने डिलीट कर दी तो डिलीट हो गई, बट इफ आई कीप इट अनचेक्ड तो ये पड़ा रहेगा यहाँ पर। व्हेन आई डिलीट द मशीन, फाइन, डिलीट हो जाने दो उसको, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मशीन और मुझको सेम डेटा चाहिए, सो आई कम हियर, अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, और तब मुझको वो डिस्क यहाँ पर दिखेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? तब वहां पर यहाँ पर मुझको डिस्क दिखेगी और उसी डिस्क को मैं अटैच कर लूंगा, एंड इट विल बी, आई विल हैव माई मशीन एंड माई एग्जिस्टिंग डेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, नो, मे बी? Yes. Okay. So I'm creating a data disk of 50 GB. I'll create one more disk. I'll call it as data disk 2, and I'll select again standard HDD, and I'll just keep it 5 GB. Let's see if that allows. Okay, great. Both are there. So now I have total 2 data disk, one operating system disk, 2 data disk. Advanced, leave it. We are not discussing advanced. So is this part clear to everyone? Is this screen clear to everyone, guys? Any doubts, any questions? इसमें डाउट है सोहेल भाई, Yes. रिगार्डिंग जो वो साइज, डिस्क साइज हम्म जो आपने सिलेक्ट किया है ना, हम्म 50, हम्म तो उसका बिलिंग कैसे होगा? इज इट लाइक 50 GB के लिए 32 बिलिंग होगा। नहीं नहीं, 50 ओके GB के नॉट लिए होगा। हाँ हाँ। ओके जस्ट Azure didn't want you to give के 1 से लेके 1000 GB तक अगर 1000 ऑप्शंस दे देगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज दे दिया, 30 32 32 64 एक्सेट्रा। बट बिलिंग जो है, जो आपने सेलेक्ट किया उसी का होगा। ओके अगर आपने 40 किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप उसमें यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट इज एज गुड एज कि आप मेमोरी कार्ड लेकर आ गए 256 GB का, यू हैव टू पे फॉर दैट। यू कांट से कि यार मैंने इसमें से 128 GB ही यूज किया है। सो सिमिलरली अगर आपने 50 GB डिस्क लिया है, हियर यू विल बी चार्ज फॉर 50 GB। अब वो 50 GB पूरा आपने उसको फिल किया या नहीं किया, Azure won't worry about it. Why? क्योंकि आपने 50 GB Azure का अक्वायर करके रख लिया है, राइट? ये 50 GB Azure किसी और कस्टमर को नहीं बेच सकता है, किसी और कस्टमर को किराए पे नहीं दे सकता। इट इज एज गुड एज द अपार्टमेंट। यू हैव टेकन द की, आपने बोला, आपने अग्रीमेंट बना लिया, यू हैव टेकन द की। अब आप उसमें शिफ्ट हुए, आपने अपना सामान रखा नहीं रखा, आपने अपना फर्नीचर मूव किया नहीं किया, डू यू थिंक दैट मैटर्स?
आपने रेंट एग्रीमेंट बना लिया, आपने की ले ली, सो व्हाट डू यू थिंक, रेंट आपको चार्ज होगा या नहीं होगा? आप उसमें शिफ्ट करो होगा। या ना करो, इट्स नॉट ओनर्स प्रॉब्लम, राइट? ओनर वुड से बिकॉज आई हैव गिवन इट टू यू, आई एम अनेबल टू गिव इट टू एनीवन एल्स, एंड बिकॉज आई एम अनेबल टू गिव इट टू एनीवन एल्स, यू शुड पे मी सम रेंट। सिमिलरली ये डिस्क आपने 50 GB अज्योर से रेंट पे ले लिए, अब आप इसको यूज करो या ना करो, इसमें डेटा फिल करो या ना करो, यू हैव टेकन इट, सो इट इज देयर। यस गाइस, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट? बहुत ही छोटे, मुश्किल से हमने 4 या 5 ऑप्शन ये किए, वी स्पेंड ऑलमोस्ट एन आवर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क। No, nothing for now, sir. Okay, so let's go ahead and go to next screen. नेटवर्किंग लीव एज इट इज, एवरीथिंग सब कुछ डिफॉल्ट रखना है फिलहाल। नेटवर्किंग सेक्शन बहुत बड़ा है, वी आर गोइंग टू कवर दैट लेटर। मैनेजमेंट, लीव इट एज इट इज। इनेबल ऑटो शटडाउन का अगर मैं आपको बिल्ड शीट में देता हूं देन डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट, लीव इट। ये सब कुछ लीव इट। मॉनिटरिंग, लीव इट नाउ, मॉनिटरिंग भी एक बड़ा सेक्शन है, विल डू इट। आई प्रेफर यहाँ पर आके डिसेबल करता हूँ, थोड़े और पैसे बचते हैं, आप ना भी करो तो इट्स ओके, आप लोगों की मशीन में वैसे भी इमीडिएटली डिलीट कर देता हूँ। एडवांस, लीव इट। टैग्स, टैग्स एक छोटा है, वी हैव 10 मिनट्स, टैग्स को कवर कर लेते हैं, तो डिस्क और टैग्स जो है वो साथ में हो जाएगा। बाय द वे, टैग्स गाइस irrespective of the resource, आज हम वर्चुअल मशीन सीख रहे हैं, tomorrow we are going to learn virtual network, day after tomorrow, I mean not literally tomorrow, just saying, day after tomorrow storage, उसके बाद migration, उसके बाद XYZ ABC whatever, टैग्स की फंक्शनैलिटी, उसका नेचर, उसका काम, उसका पर्पस एग्जैक्टली सेम है थ्रू आउट द Azure, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर अगेन एंड अगेन किसी और रिसोर्स में जब हम सिखाते, व्हेन आई विल बी टीचिंग यू, सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर टैग्स अगेन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज feel free to ask. Now what do you think tags are? You can read it, your understanding, a layman term, just give it a try. What do you think tags are? Name of the machine. Okay, what else? Tag the virtual VM with any kind of a team or a group, Hmm. we can say. Good. Good. All are correct. Let me explain it to you. Now we just have one machine, two machine. आपके इसमें मुझको maximum 5 या 6 मशीन दिख जाते हैं guys. Okay. Imagine a production environment जहां पर thousands of machine है. And now I'm telling you कि यार can you please give me the list of machines which are running for PeopleSoft application. ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी पूछ लिया ना, वो फिर भी यहाँ से हमको एक स्कोप होता है, दो इट इज वेरी लॉन्ग रूट कि यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ से जाकर इससे डेटा निकालना कि कितने टोटल मशीन है जिसमें जो 2019 पर चल रहा है, ये पैरामीटर का यूज करके हम डेटा निकाल सकते हैं, बट दैट इज वेरी टीडियस टास्क। इसमें भी ये 2019 किस एप्लीकेशन के लिए चल रहे, डिड यू मेंशन इट एनीवेयर कि हु इज योर एप्लीकेशन ओनर, किसने रिक्वेस्ट किया था ये, डिड यू गेट एनी चांस टू मेंशन दिस दैट ओके सुहेल रिक्वेस्टेड दिस, this was requested by Basha, this was requested by Tushar, this was requested by Wasim, this was requested by Robin? Did you get any chance anywhere to mention that? After 2 years अगर मैं किसी से पूछूं कि मशीन आपने कौन सी रिक्वेस्ट को लेकर बनाई थी, what you will have to do, 2 साल पहले के आपको ईमेल्स खंगालने पड़ेंगे, टिकट्स देखना पड़ेगा, राइट? Are you guys getting the point? So to avoid that we have this tags option. यहाँ पर you can select your own option. इन लाइव एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनाया हुआ होता है, पॉलिसी से ही अप्लाई हो जाता है। आई शो इट यू कैसे अप्लाई होता है, वो भी बता दूंगा मैं पॉलिसी से, बट व्हाट इज इट, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आई कैन क्रिएट माई ओन नेम इन वैल्यू वाला ये, या इनको भी यूज कर सकता हूँ मैं, या मैं अपना खुद भी बना सकता हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू कीप दिस ओनर, ओके। देन बाय द वे ये देख, लुक एट दिस, ये किस किस पे लग रहा है पता है, ये ऑल द रिसोर्सेस, ये वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जितने रिसोर्स हो गए ना सब पे लग जाएगा।
एज इन लगा सकते हो, नॉट ऑटोमेटिकली, मीन टू से लग जाएगा, इस पे लगा सकते हो आप। एज ऑफ नाउ किस पे लगेगा ये टैग गाइस? कहां पर है हम, वेयर आर वी, ऑन विच रिसोर्स आर वी? VM. यस, तो ये सब VM. वीएम पे लग VM. रहा है, इसका मतलब ये इन पे लग सकता है। ठीक है। सो ओनर सुहेल, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 2019। दिस इज अप टू यू, इसमें कोई ये नहीं है, की भी आप अपना बना सकते हो, वैल्यू भी आप अपना बना सकते हो। ठीक है, देन आई एम सेइंग के विच एप्लीकेशन, मेजर चीज है मुझको बिलिंग के लिए जानना होता है, विच एप्लीकेशन। ठीक है, सो आई एम सेइंग कि मैंने बनाया है, लेट्स से मार्केटिंग के लिए बनाया है, मार्केटिंग का कोई एप्लीकेशन है। देन इट्स अप टू यू, जैसे चाहे बनाओ, बट अंडरस्टैंड वन थिंग लॉजिकली, अगर मैंने ये सब आप पे ही छोड़ दिया, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर वर्किंग फॉर वन प्रोजेक्ट, आप थाउजेंड्स ऑफ मशीन बनाने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू गाइस यार अपना अपना बना लो आप, ठीक है, आपके हिसाब से, आई एम नॉट गिविंग यू एनी इंस्ट्रक्शन, आप अपना अपना बना लो। तो समवन इज राइटिंग एप्लीकेशन, उसके आगे लिख दिया मार्केटिंग, सम अदर मशीन वो लिख रहा है, कोई और की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर सेम स्क्रीन है, डोंट गेट कंफ्यूज, लेट्स से आई क्रिएटेड, मैंने टैग्स में लिख दिया एप्लीकेशन, उसके आगे लिख दिया मार्केटिंग। लेटर ऑन तुषार क्रिएटेड वन मशीन, ऐसा लिख दिया उन्होंने ऐप, और लिख दिया मार्केटिंग, कि ठीक है ये मार्केटिंग का मशीन है। ठीक है, वसीम ने नेक्स्ट मशीन बनाई, ही मेंशन इस तरह से, यहाँ पर अगेन लिख दिया मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग की मशीन है। देन किसी और ने एप्लीकेशन की जगह एप्स लिख दिया, किसी ने एप्लीकेशंस लिख दिया। नाउ इफ आई टेल यू कि यार ये सारे मशीन जितने थाउजेंड उस पर रन करो, और मुझको बताओ कि मार्केटिंग के कितने मशीन है, राइट? सो व्हेन यू रन अ क्वेरी, आपको कोई एक ये तो लगेगा पैरामीटर, कि नेम इज इक्वल टू वैल्यू, एक पैरामीटर लगेगा व्हेनेवर यू रन, वेरेवर यू रन, वी आर नॉट लर्निंग दैट नाउ, बट बेसिक एक एक्सेल भी ले लो, तो ये पैरामीटर तो देने पड़ेगा ना आपको, ये थाउजेंड मशीन में कितने मशीन्स के नेम के अगेंस्ट ये है और उसके अगेंस्ट ये है। सो देयर इफ आई सेलेक्ट नेम एप्लीकेशन इक्वल्स टू मार्केटिंग, व्हाट डू यू थिंक कितने रिजल्ट्स आएंगे? इफ आई हैव 3 मशीन्स, 4 मशीन्स इस तरह से बने हुए हैं, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी रिजल्ट्स विल आई गेट, वेयर माय क्वेरी इज नेम इज इक्वल टू एप्लीकेशन इज इक्वल टू मार्केटिंग, ये मेरी क्वेरी है। एंड इमेजिन ये अलग अलग 4 मशीन्स है, वेट I'll just open notepad, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट इमेजिन ये 4 अलग अलग मशीन है गाइस, ठीक है। सॉरी, मेरा क्वेरी है लिस्ट ऑल वीएम जिसमें नेम जो है, नेम वाला कॉलम, ठीक है, दिस कॉलम इज नॉट बीइंग चेंज, सो नेम इज इक्वल टू एप्लीकेशन, और उसकी वैल्यू है, उसके वैल्यू में होना चाहिए, क्योंकि कई मशीन्स हो गए जिसके वैल्यू में कुछ और भी होगा, सो इसके वैल्यू में होना चाहिए मार्केटिंग। नाउ इफ आई रन दिस क्वेरी, हाउ मेनी मशीन्स विल आई गेट गाइस? इमेजिन ये 4 अलग अलग मशीन्स है, ठीक है, हाउ मेनी मशीन्स एम आई गेटिंग हियर इफ आई रन दिस क्वेरी? One. 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 एंड हाउ मेनी मशीन्स आर देयर एक्चुअली, मार्केटिंग ने कितने मशीन्स बनवाए? Four. 4, right? So you're not getting the correct data, hence though technically it is possible to write anything, but in your actual environment ये हमेशा आपको दिया गया होगा, या पॉलिसी के तरह इसको इन्फोर्स करते हैं, और पॉलिसी की तरह इस तरह से इन्फोर्स करते हैं दैट दिस इज नॉट एडिटेबल, ये एडिटेबल होगा ही नहीं आपके लिए, ये एप्लीकेशन वाला जो है ये फिक्स्ड होगा, यू हैव टू फिल हियर, यू हैव टू कम हियर एंड फिल समथिंग, और यू कैन गेट के दोनों भी फिल कर दो, बट इनका भी नाम आपको दिया होगा, यू हैव टू मेक श्योर टू अधेयर टू दैट। अगर आपके बिल शीट में एप्लीकेशन लिखा है, सो यू कैन नॉट बी ओवर स्मार्ट और उसको आप ऐप लिख दो, लेटर ऑन व्हेन यू हैव 1000 2000 मशीन्स और आप कोई क्वेरी रन करना चाहते हो, इट विल बी अ बिग ब्लंडर। गेटिंग इट गाइस? आई सिंपली आई कैन हैव के 2019 ओएस के कितने मशीन है, सो इफ आई हैव गिवन यू नेम एंड वैल्यू इस तरह से, आप इसी तरह से लिखोगे, यू वोंट गो अहेड एंड राइट लाइक दिस, बिकॉज लेटर ऑन मैं क्वेरी क्या रन करने वाला हूं, जिसने नाम दिया उसको पता है वो बाद में क्या क्वेरी रन करेगा, ही इज गोइंग टू रन अ क्वेरी लाइक ओएस 2019,
तो अगर उसमें आपने विंडोज 2019 इस तरह से कुछ लिख दिया है, सो दिस मशीन विल नॉट अपीयर इन दैट क्वेरी, right? So though technically it is possible to write anything, but in this one, in your production environment, you'll always see naming convention, और जो आपको दिया गया है exactly वही आप इसको ये करोगे. Is this point clear to everyone? Yes. And it could be anything. अब मैं आपको कोई चीज दे रहा हूँ, it's up to you. आप मशीन नंबर whatever you want, you can keep it. ठीक है, आपको जिस तरह से उसको याद करना है वो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी क्रिएटेड डेट. चलो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आपका टास्क कब कंप्लीट किया. सो आई एम टेलिंग एवरीवन कि यार यू शुड हैव वन टैग with created date and put your date when you are performing the homework or when you're performing the task 8 Feb. यहाँ पर मुझको आई एम नॉट वरीड अबाउट फॉर्मेट वगैरह भी. इफ आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉर्मेट, कीप इट एनीथिंग, क्योंकि आई नो हार्डली 10 or 12 people are there. आई कैन गो ahead and check. But if there were 100 of people, यहाँ पर मैं आपको देन इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दूंगा, तो इट विल बी easier for me to run the query. So it can be anything. प्रोडक्शन ये मैक्सिमम हर जगह होगा. सॉरी, दिस एनवायरमेंट, कि ये मशीन जो आपने बनाया है इसका एनवायरमेंट क्या है. इज इट अ टेस्ट मशीन? लुक एट दिस. इज इट अ टेस्ट मशीन और इज इट अ बाय द वे सेम दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो सेम मशीन पर. इज इट अ प्रोडक्शन मशीन? इज इट अ टेस्ट मशीन? क्या है? सो लेटर ऑन व्हेन आई वांट टू रन अ क्वेरी कि हाउ मेनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, और लेट्स से कि बिल बहुत आ रहा है, टेस्ट मशीन्स डिलीट करते हैं यार कुछ, चलो. सो हाउ मेनी टेस्ट मशीन्स डू आई हैव? ये तो आपने यही यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है. ऑपरेटिंग सिस्टम तो फिर भी एक ऐसी चीज है, यू कैन यूज दिस पैरामीटर्स और फेच कर लोगे आप. रीजन मैंने पूछ लिया तो आप यहाँ से फेच कर सकते हो. बट दिस इज टीडीएस, ये बहुत इजी होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि वहां रीजन आपने सेलेक्ट किया है, फिर भी यू विल सी यहाँ पर रीजन. क्लाइंट आपको बोलेगा कि टैग्स में भी मुझको रीजन चाहिए. व्हाई? later on when they run the query, it becomes very easy for them. within a minute, एक दो चार क्लिक पे उनको रिपोर्ट मिल जाता है कि ठीक है, प्रॉड में ईस्ट यूएस में इतने हैं, टेस्ट में ईस्ट यूएस में इतने हैं, ईस्ट यूएस में टोटल मशीन इतने हैं. एवरी काइंड ऑफ क्वेरी दे कैन रन. imagine this as your excel file. Is this clear, guys, to everyone what is tags? Yes, any doubts, any questions, please do ask. No questions, guys? Okay, let's go ahead, click on create. यहाँ पर सेम चीज आप रिव्यू करते हो, बस जो जो आपने वहां पर ऐड किया था, जस्ट गो अहेड एंड चेक. दिस इज ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, देन यू इट विल वैलिडेट. कोई फेलियर यहाँ पर होता है यहीं पर बताता है, यू हैव टू गो टू दिस स्क्रीन, गो देयर, डू इट, click on create. This machine will take some time, it will get created, then we'll resume. We have only 30 seconds left in this session, guys. So we'll come back once the machine is ready. I'll ping you in the group. May take 5 to 8 minutes. I'm stopping the session now.